स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Okay, good morning to all of you. In the last classes, we have discussed some types of sand which is used in for making the sand mold casting process. Okay, and today we will discuss the properties and some testing based on the foundry process. Is it clear? Okay. Right now we are going to discuss some properties here, which is used very useful for casting process. First one is strength. What is strength? What do you mean by strength? I will learn something about strength in the material, strength of material. What is strength? Anyone? What, sir? What do you mean by strength of any material? Sir, ability to bear the load. Very good. Resist the external load. Okay. Without failure, yeah, without deformation. This is clear. Okay. Yes, sir, without deformation. Okay. Just we will see in same manner that we have some strength. There must be some strength for the molding sand so that it can sustain or it can retain its shape, mold cavity. Good morning. Good morning. Okay. So right now we are going to discuss about strength. There are three types of strength we will discuss here. First one is green strength. Okay, this is basically related to the green sand. Okay, strength of the green sand. What is green sand? Okay, green sand is, I have discussed in the last classes, that green sand is that which contains the moisture. Is it clear? जिस सैंड में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, that is known as our green sand. Is it clear? So green sand actually गेट में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज ग्रीन सैंड, व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन सैंड. ओके, तो ग्रीन सैंड में क्या होता है, इसका ऑप्शन दिया रहेगा कि इसका कलर जो होता है ग्रीन होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसमें क्ले होता है एंड मोर अदर ऑप्शंस में भी देयर, बट यू हैव टू टिक फॉर द क्लियर. This is the green sand. What is green sand? Green sand is that sand which contains moisture. Okay, okay. So green sand should have the enough strength so that it can retains the constructed part of the molding sand. Is it clear? तो क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ग्रीन सैंड से जो बनाते हैं हम आपका mold cavity, they should have the must enough strength so that the pattern can be taken out from the mold cavity. Okay, क्या करते हैं आपकी mold cavity को क्या करते थ्रो करते हैं, ठीक है, तो विड्रॉ करने के ड्यूरेशन में वो ब्रेक ना हो जाए. ओके, so there should be much more strength so that it can break down. Okay, that is known as our green strength. Okay, and also erosion of mold wall surface does not occur during the molten flow process. ठीक है, तो molten फ्लो करता है उसके ड्यूरेशन में क्या होता है आपका, देयर में बी ए डिप्लेशन ऑफ द मोल्ड वॉल. ठीक है, मोल्ड वॉल का क्या डिप्लेशन या इरोजन हो सकता है. ठीक है, so that should not be considered because when that will happen, so you will get the defective. Is it clear? So there must be a green strength. Okay, now what is dry strength? Dry strength is nothing, it is just when the molten metal is poured into the mold cavity. Are you listening now? Hello, are you understanding that? Okay,
Yes, when sir. molten metal, okay, dry strength is what? When molten metal is poured into the mold cavity, the sand around the mold cavity is quickly converted into dry sand because of there is a evaporation takes place. ओके, तो इसमें क्या होता है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप मेल्टन मेटल को पोर करते हो मोल्ड कैविटी में, तो आपका जो मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में जो भी मेरा सरफेस आता है उसका जो मॉइस्चर होता है इमीडिएटली क्या करता है, इवोपरेट कर जाता है, उसका मॉइस्चर होता है इवोपरेट कर जाता है, ठीक है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल। इज इट क्लियर? तो ये जो प्रॉपर्टी हुआ आपका, आप जो हुआ, तो ये ड्राई सैंड जो लेयर है, दे हैव मस्ट sufficient strength so that it can retain its shape and avoid the erosion of the mold wall during the flow of molten process. That is known as our dry strength. Dry strength that is dry लेयर के लिए ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ड्राई लेयर कहाँ पे होगा? जस्ट एडजेसेंट टू दी, इट इज जस्ट एडजेसेंट टू दी liquid metal. Is it clear? Liquid metal के just adjacent में होगा, that is known as they have the must sufficient strength that it can retain its shape. Is it clear? Am I right? Am I right? समझ में आई बात? Yes, Green yes, strength sir, और dry yes, sir. strength का अंतर है। ओके, ठीक है। तो ड्राई स्ट्रेंथ also prevent the enlargement of the mold cavity, ठीक है। There may be due to the heat के, यदि हम किसी एलिमेंट में हीट देते हैं, किसी पार्टिकल में हीट देते हैं, तो क्या करता है, वो एक्सपेंड करना कोशिश करता है, ठीक है। तो देयर में बी सम एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन द मोल्ड कैविटी ड्यू टू द मोल्टन हाई टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल। to prevent that there must be a dry strength of the mold cavity. Is it clear? That is known as our dry strength, ठीक है। अब हॉट स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो हॉट स्ट्रेंथ क्या होता है? हॉट स्ट्रेंथ इज नथिंग व्हेन द टोटल जो मॉइस्चर जो होता है आपका सैंड मोल्ड होता है, दैट गेट्स total moisture will be eliminated throughout the system, that is known as our hot strength। उस कंडीशन में भी मेरे पास क्या रहेगा, वो जो आपका ये मोल्ड इंटैक्ट है, उसका जो स्टेप है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हॉट स्ट्रेंथ, तो ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ और हॉट स्ट्रेंथ में जस्ट फॉर द आप निकालते हो, क्या निकालते हो वहां से तब, ठीक है, क्रिएटिंग द मोल्ड कैविटी, ठीक है। ये ड्राई स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया कि ड्राई लेयर होता है उसका स्ट्रेंथ, ठीक है। तो व्हाट शेप, ओके, तो व्हाट द इरोजन एज वेल एज शेप मेंटेन द शेप ऑफ द मोल्ड कैविटी। एंड हॉट स्ट्रेंथ क्या हो गया, टोटली एलिमिनेटेड हो जाता है, मॉइस्चर शुड बी एलिमिनेटेड टोटली। इज इट क्लियर? एंड दैट स्ट्रेंथ इज okay. Any doubt? Hello. Repeat the hot stand network problem, sir. Okay. Hot strength क्या बताया था? Hot strength is the strength of the sand that is required to hold the shape of the mold cavity after what? After total moisture is eliminated, ठीक है। टोटल मॉइस्चर जितना है वो एलिमिनेट हो जाएगा by the heat of the mold, sorry, by heat of the molten metal जब हीट, उसके पास क्या है, हीट है, ठीक है। तो they will the evaporation takes place। आपके पास ग्रीन स्ट्रेंथ जो है, ग्रीन सैंड के पास क्या है, मॉइस्चर है। सैंड के पास क्या है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर क्यों हमने लिया था, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसका आपका क्या करते हैं, उसको मिक्सिंग करने का टाइम में बताया ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़े, ठीक है। अब नाउ व्हेन यू विल pour the metal, liquid metal, hot liquid metal will get poured into the mold cavity, the total moisture contents in the system will get vaporized, okay। टोटल मॉइस्चर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो in that conditions you must have the strength of the mold cavity
so that it cannot disturb the original shape and size. So that is known as our hot strength, okay, of the sand. Is it clear? तो ये तीनों टाइप का स्ट्रेंथ समझ में आया, ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now another property is refractoriness. Okay, what do you mean by this? This is nothing, it is the ability of the molding sand. What is this? So it is the ability of the molding sand to withstand the high temperature of the molten metal. ये क्या करता है? High temperature of molten metal may have the temperature is around 2 to 300 degree more than the melting point. That may be 1600 to 1700, 1800 anyway. Okay. तो ये जो है 1500 से 1600 डिग्री को ये सस्टेन कर पा, ठीक है, ये बर्न जल नहीं जाए, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द molten cavity, ठीक है, mold cavity. Is it clear? So that is here ability to, how will you define the refractiveness? It is the ability of the molding sand to withstand with the high temperature. Is it clear? It should be high or low. It should be high or low. Hello. Yes, sir. Okay, it should be high or low. For this, Low, sir. Low. it should be always high. Okay. आप यदि मान लो कि बालू जो है आपका, रिफ्रैक्टिवनेस कहने का मतलब क्या होगा, मोल्ड जो कैविटी है किस मटेरियल से बनाया गया है, वो बालू से बनाया गया, सैंड पार्टिकल से बनाया गया. ये आपका बर्न कर जाएगा, तो बर्न करने के बाद क्या कर जाएगा, देयर विल बी नो एडेसिव फोर्स, ठीक है, उसमें कोहेसिव फोर्स वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है. तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, इसका जो ये शेप है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है. तो देयर मस्ट बी ए हाई रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ द सैंड मोल्ड. इज इट क्लियर? ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, कंटेंट. ये आपको मिला देते हैं तो इसका जो होता है आपका स्ट्रेंथ जो है, रिफ्रैक्टिवनेस जो है बढ़ जाता है. इज इट क्लियर? तो आपका ग्रेन साइज पे भी डिपेंड करता है, ग्रेन साइज ऑफ द सैंड पार्टिकल. इज इट क्लियर? देयर मे बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन साइज, या देयर मे बी ए लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज, ठीक है, इसमें क्लासिफाई करते हैं, ठीक है. तो आपका ये आपका क्या है, इनहेंस द प्रॉपर्टी आपको करना है, टू इनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस, ठीक है. यू शुड हैव द लोअर परसेंटेज ऑफ लाइम, मैग्नीशिया एंड ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स वगैरह जो है, लाइम है, मैग्नीशिया जो है, ये सब क्या करना है, इसका जो क्वांटिटी है इसको लोअर कर देना है, ठीक है. इट इज द रिफ्रैक्टिवनेस इज मेजर्ड बाय द सिंटर पॉइंट, इट इज नॉट मेजर्ड बाय द मेल्टिंग पॉइंट. सिंटर पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ है, इट इज द टेम्परेचर जहाँ पे क्या करता है, मेटल जो है एक दूसरे में चिपकता है. इज इट क्लियर? दैट इज नोन एज आवर सिंटर पॉइंट. ओके. Now another property is that permeability. What do you mean by permeability? Permeability is nothing, it is the gas evolving capability of the molding sand. कहने का मतलब क्या होता है, ये porosity होता है, ठीक है. To allow it is a property, that is porosity, which is allow the escape of any air, gases or moisture present or generated in the mold when molten metal is poured into it. ठीक है. तो ये आपका जो सैंड मोल्ड का प्रॉपर्टी होता है, पोरोसिटी होता है या प्रॉपर्टी बोलिए, तो क्या करता है, यदि मान लो कि सैंड मोल्ड में या मोल्टन मेटल में जो भी गैस इवॉल्व रहता है, जो भी गैस उसमें जो गैस जो है उसमें इंसर्टर रहता है, उसको क्या करता है, उसको मॉइस्चर को क्या करता है, एस्केप करता है, ठीक है, ताकि मेरे पास डिफेक्टिव जो है कास्टिंग ना हो पाए. ठीक है. यदि मान लो कि ऐसा नहीं हुआ, परमिबिलिटी शुड नॉट बी एज डिजायरेबल, ठीक है, तो क्या होगा, देयर मे बी अ डिफेक्टिव कास्टिंग. इज इट क्लियर? ठीक है. तो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस द गैस entrapped in the system must be escape out. Is it clear? To get the enhanced quality of the product. Is it clear? ठीक है. That is why permeability is very essential whenever you are going to design for a casting. Okay. ठीक है.
So ramming, the extent of ramming of sand directly affect the permeability. रैमिंग मतलब क्या होता है कि उसको कंप्रेसिव फोर्स देके हम क्या करते हैं, रैमर के थ्रू क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, सो दैट इट गेट्स बाउंडेड, ये जो सैंड पार्टिकल है क्लोज आ जाए और बाउंड कर जाए, ठीक है। बाउंड मतलब क्या क्या होता है, एक दूसरे से चिपक जाए, ठीक है। ओके, दैट इज बाइंडिंग फोर्सेस। ओके, तो ये क्या होता है आपको कि जितना रैमिंग फोर्स, जितना ज्यादा आप रैम करोगे उतना ज्यादा परमेबिलिटी क्या कहता है, घटेगा, ठीक है। परमिलिटी कहने का मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में गैप जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो पोरोसिटी में भी इफेक्टेड, ठीक है, पोरोसिटी में भी डिक्रीज। इज इट क्लियर? एम आई राइट? हेलो? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ज्यादा रैमिंग भी नहीं करना है हमको, सो दैट यू हैव टू मेंटेन द परमिबिलिटी। ओके, ठीक है। और कम भी यदि रैमिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, एडेसिव नहीं होगा, वो एक दूसरे से बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है, वो दूसरे से चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो देयर मे बी सम मॉडरेट रैमिंग। ओके, तो ये परमिबिलिटी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ ग्रेन साइज। ओके, द ग्रेन साइज मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एज आई हैव टोल्ड इन द लास्ट slide. There may be a large size of grain, medium size of grain और स्मॉल साइज ऑफ ग्रेन। यदि लार्ज साइज ऑफ ग्रेन यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, लार्ज साइज ऑफ ग्रेन में ज्यादा पोरोसिटी मिलेगा मेरा, ठीक है। ग्रेन और स्मॉल साइज में कम पोरोसिटी मिलेगा, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज द फंक्शन, परमिबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ ग्रेन साइज आल्सो। इट ग्रेन शेप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। द शेप ऑफ द ग्रेन साइज में भी डिफर, ओके, सो दैट द परमिबिलिटी आल्सो वेरी। ओके, तो यहाँ पे मॉइस्चर एंड क्ले कंटेंट्स इन द मोल्डिंग सैंड। मॉइस्चर, देखो मॉइस्चर कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट ज्यादा मिलाओगे तो वहां पे क्या होगा, परमिबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। आल्सो क्ले इज नथिंग, इट इज व्हाट, इट इज द चिकनी मिट्टी जो वो कहते हैं ना, चिकनी मिट्टी। ओके, इट हैज अ गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज मिक्स्ड इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग, मेकिंग द मोल्डिंग सैंड। इज इट क्लियर? तो आपको क्या है, क्ले कंटेंट और मॉइस्चर पे भी डिपेंड करता है और परमेबिलिटी। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट वन इज कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस इज व्हाट, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस, आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हो। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, द बाइंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड, द बाइंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ टू आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। बट द फोर्स, व्हाट इज एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल से अदर पार्टिकल के मॉलिक्यूल में जो फोर्स होता है, दैट इज सपोज कि वाटर एज वेल एज ग्लास मॉलिक्यूल, यदि ग्लास का वाटर ग्लास सॉरी ग्लास में यदि आप पानी रखते हो तो देयर मे बी अ फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एज वेल एज ग्लास मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दैट इज नोन एज आवर एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स होता है फॉरेन पार्टिकल के साथ फोर्स होता है, लेकिन कोहेसिव फोर्स होता है विद इन द सिस्टम, विद इन द सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोहेसिवनेस आपका क्या है, बाइंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड। इज इट क्लियर? इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो सैंड है, सैंड का ग्रेन है, उसके अंदर उसके बीच में क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स का काम करता है, दैट इज नोन एज कोहेसिवनेस ऑफ द molding sand. Is it clear? Is it clear? The molding sand should have capable of withdrawing the compressive as well as erosion force exerted by the liquid metal while filling the mold cavity. Is it clear? तो इसके पास एक आपका कोहेसिव फोर्स ऐसा ज्यादा रहना चाहिए, सो दैट कि ये जो आप कंप्रेसिव फोर्स जो रैमिंग के थ्रू आप प्रोवाइड करते हो एज वेल एज erosion forces that will be exerted by the liquid metal during filling process, that all will be compensated by the cohesive forces, ठीक है। cohesive force क्या करेगा, इसको विड्रॉ करेगा, ठीक है। इसको इतना कैपेबल होना चाहिए कि कंप्रेसिव फोर्स एज वेल एज कोरोसिव फोर्स को ये क्या करे, रह सकता है, ठीक है। हेलो हेलो, Yes, sir. ओके, ठीक है। यदि लो स्ट्रेंथ रहेगा, कोहेसिव स्ट्रेंथ यदि लो रहेगा तो क्या करेगा, रिजल्ट्स इन डिफेक्टिव पीस ऑब्वियसली। there may be erosion, there may be sand particles mixed with the molten metal. Is it clear? as the sand particle जो है molten metal में घुल जाएगा तो there may be a defective casting. Is it clear? It also depends on the grain size, sand particle shape and size and moisture contents. Is it clear? Okay,
अब स्ट्रेंथ इनवर्सली इफेक्ट द पोरोसिटी। यदि स्ट्रेंथ आपका है, कोहेसिव स्ट्रेंथ है, यदि ज्यादा होने का मतलब क्या है, कोहेसिव स्ट्रेंथ विल बी मोर, that is the you have to go for the lower porosity। यदि कोहेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, पोरोसिटी को डिक्रीज करेगा। पोरोसिटी ज्यादा रहेगा तो कोहेसिव स्ट्रेंथ कम रहेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी। इज इट क्लियर? ओके। एडेसिवनेस मैंने जैसे बताया था कि क्या है, टू गेट स्टिक और एडेयर विद द फॉरेन मटेरियल। ओके, फॉरेन मटेरियल कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका सेम मॉलिक्यूल नहीं, दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में, अदर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज एडेसिव फोर्स। इज क्लियर? तो ये जरूरी क्यों है? सपोज कि आपका मोल्डिंग स्टैंड है और जो आपका जो फ्लास्क जो है, फ्लास्क कहने का मतलब कोप एंड ड्रैग, वो जो वुडन या आपका मेटल का बना रहता है, ठीक है, मेटल का रहता है, कास्ट आयरन का रहता है, ठीक है, और सैंड पार्टिकल के बीच में देयर शुड बी ए फोर्स सो दैट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू विड्रॉ द सैंड, ओके, तो आपका क्या है, ये रिटेन द इट कैन रिटेन द मोल्ड कैविटी एंड स्टे इन द बॉक्स। ठीक है, तो आप कभी भी आप क्या करोगे, इसको मूव करोगे, ठीक है। यदि कोप एंड ड्रैग को क्या करते हैं, अलग अलग हम बनाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक दूसरे पे रखते हैं, ठीक है, कोप को क्या रखते हैं, ड्रैग पे रखते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यदि आपका एडेसिवनेस कम रहेगा तो क्या करेगा वो, मतलब कि जो सैंड कॉम्पैक्ट, सॉरी सैंड बनाया हो, सैंड का जो आपका जो शेप बनाया हो इनसाइड द कोप, they will get damage। ठीक है, वो क्या करेगा, गिर जाएगा नीचे, ठीक है। that is why there must be some adhesiveness। okay okay, समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज दिस फ्लोएबिलिटी और प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंपैक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कंपैक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि आपका ये क्या करता है, ठीक है, is the oil particle is flow करता है like the fluid particle। is it clear? That is what is nothing is of the करने का मतलब है, या किसी प्रोसेस लेते हैं to achieve our harness, it gets compacted or like the solid state। ability सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो, बोल रहा है? हेलो हेलो, Yes, sir. ओके। तो ये फ्लोबिलिटी क्या होता है, फ्लोबिलिटी इज नथिंग, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सैंड टू फ्लो ड्यूरिंग रैमिंग प्रोसेस। ठीक है, ये फ्लो करता है जस्ट लाइक अ फ्लूइड पार्टिकल। इज इट क्लियर? तो ये आपका फ्लो जो होता है आपका, सो दैट आपका जो यूनिफॉर्मली ऑल पोर्शन में क्या कर रहा है, आपका जो सैंड पार्टिकल है सेट कर जाए। दैट इज व्हाई देयर मस्ट बी अ फ्लोबिलिटी इन द सैंड पार्टिकल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका फ्लोबिलिटी है, इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन ग्रीन स्ट्रेंथ। ग्रीन स्ट्रेंथ जो होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके, और डिक्रीजेस इन साइज। ठीक है, तो आपका जो फ्लोबिलिटी है, साइज यदि डिक्रीज करेगा तो भी फ्लोबिलिटी बढ़ेगा, और ग्रीन स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो भी फ्लोबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो एबिलिटी आल्सो वेरीज विथ मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, यदि मॉइस्चर एज क्ले कंटेंट यदि बढ़ेगा घटेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये भी वेरी करेगा फ्लोबिलिटी, दैट इज प्लास्टिसिटी। ओके, कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है? कोलैप्सिबिलिटी कहने का मतलब इट इज डिजायरेबल बिकॉज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू विथड्रॉ द कास्टेड प्रोडक्ट, क्या करता है
कि आप कास्टेड प्रोडक्ट को क्या करोगे, विड्रॉ करोगे फ्रॉम द मोल्ड कैविटी, तो आपका इजिली कोलेप्सिबल होना चाहिए, इजिली जो है सैंड आपका मोल्ड जो है वो टूट जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा, नहीं टूटेगा तो क्या होगा, देयर में बी देयर आपका जो कास्टिंग प्रोडक्ट है और सैंड जो है वो क्या करेगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा, ठीक है। देयर में बी अ प्रॉब्लम फॉर इजिली रिमूवल, ओके। सो टू अचीव दिस देयर मस्ट बी ए कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर्टी, इसलिए कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर्टी होना जरूरी है। बात समझ में आया? हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, ओके। अब आपका क्या है, सैंड टेस्टिंग है कुछ, ठीक है। टेस्टिंग क्यों करते हैं, ठीक है। ऑलवेज क्या करता है, बाजार में आप जाओगे तो हमेशा क्या चाहिए किस टाइप का आप पूछते हो, देयर मे बी डिमांड फॉर गुड सरफेस फिनिश एज वेल एज हाई एक्यूरेसी इन द कास्टिंग, ठीक है। कस्टमर का डिमांड हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट शुड बी ऑलवेज हैविंग गुड सरफेस फिनिश एंड हाई एक्यूरेसी प्रोडक्ट, इज इट क्लियर? देन इफ दे विल गिव यू द बेटर मनी, बेटर प्राइस, इज इट क्लियर? ठीक है। टू अचीव दिस वी रिक्वायर द क्वालिटी ऑफ द मोल्ड एंड कोड, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी हमको इंप्रूव करना पड़ेगा, मोल्डिंग सैंड का क्वालिटी, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ऑप्टिमाइज वे में मोल्डिंग सैंड को हम कलेक्ट करेंगे एज वेल एज मोल्डिंग सैंड का डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लेस एक्सपेंसिव लोकल सैंड को यूज करेंगे, ठीक है, ओके। इट ऑल्सो इंश्योर द रिलायबल सैंड मिक्सिंग, ठीक है। रिलायबल सैंड मिक्सिंग कहने का मतलब कि we will achieve will opt that process so that we can that will be reliable to us, is clear? And also enable the utilization of inherent property of the molding sand. You have to also utilize the better property which has been having the in the mold sand, is it clear? तो सैंड टेस्टिंग जो होता है, सैंड टेस्टिंग के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा आपको, सैंड टेस्टिंग का पर्पस ही यही होता है कि आपको बेटर से बेटर सरफेस फिनिश के लिए किस टाइप का मतलब पोरोसिटी अचीव करना है, किस टाइप का हमें आपका स्ट्रेंथ अचीव करना है, आपका फ्लोबिलिटी अचीव करना है, दैट विल बी ऑल बी मेजरेबल, दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर सैंड टेस्टिंग, इज इट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यदि डिटेक्ट करने के बाद जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी में वेरिएशंस होता है उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यदि स्टैंडर्ड जो क्वालिटी होता है उसमें जो भी वेरिएशंस आता है आफ्टर टेस्टिंग के बाद, तो उसको हम एडजस्ट करते हैं, दैट इज आवर sand testing, the purpose of sand testing, is it clear? It allow the choice of sand mixers to give a desired surface finish, ठीक है। this यही ऑब्जेक्टिव है कि we have to achieve the good surface finish as well as good accuracy, better accuracy for the casting, is it clear? So that you can get more valuable price, is it clear? Okay. Now ये मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, इट इज द अमाउंट प्रेजेंट इन द मोल्डिंग सैंड। मॉइस्चर कंटेंट में क्या बताया था, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द मोल्डिंग सैंड, ठीक है। तो ये जस्ट क्या करते हैं, आपका देखो कोई सैंपल बनाते हैं 20 से 50 ग्राम का, ठीक है, और इसको क्या करता है, हीटर में रखते हैं, इंफ्रारेड हीटर में, ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए। उसको क्या करते हैं, तो मोल्डिंग सैंड को क्या करते हैं, मोल्डिंग सैंड को क्या करते हैं, उसमें जो मॉइस्चर रहता है उसको एपोराइज होने देते हैं, ठीक है। एवोपोरेट 100% एवोपोरेट हो गया, उसके बाद ड्राई स्टेट में आ गया, वो ड्राई स्टेट में आ गया, उसको हम क्या करें, वेट कैलकुलेट कर लिए उसका। वेट कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि देखो W1 क्या है, W1 इज व्हाट, W1 इज देयर वेट ऑफ द सैंड बिफोर ड्राइंग, ठीक है। तो आपका सूखने से पहले जो वेट होगा, उसके बाद जो सूखने का वेट होगा, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, तो आपको क्या यहाँ पे मिल जाएगा, वाटर कंटेंट मिल जाएगा या मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा, डिवाइड बाय W1 इज टोटल वेट ऑफ द सैंड बिफोर ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग से पहले जितना वेट था, दैट विल गिव सम द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो हेलो हेलो, ओके, आई एम लिविंग, एक और पढ़ा देते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सैंपल प्रिपरेशन करने का ये तरीका है, ठीक है। अब परमिलिटी टेस्ट पढ़ लो, ठीक है। तो परमिलिटी टेस्ट क्या होता है, द क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एयर दैट विल पास थ्रू ए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन ऑफ सैंड एट ए पार्टिकुलर प्रेशर कंडीशन इज कॉल्ड परमिलिटी ऑफ द सैंड, ठीक है। तो आपको एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन तैयार करते हैं जिसका
आपका जो ये हाइट होता है और डायमीटर दोनों होता है बराबर आता है, दैट इज द सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन. इज इट क्लियर? हैविंग द डायमीटर एज वेल एज हाइट ऑफ 5.08 centimeter. Is it clear? Okay. And the area of cross section, when you will calculate here, you will get the area of specimen will be 20.268 centimeters square. Is it clear? And this will be a formula for calculating the permeability number. Okay. Permeability number is nothing, it is represented by n, and n is equal to V into H. That is where V is here what? V is the volume of the air passing. Okay, volume of the air passed, and it is taken around 2000. Standard value यही है आपका 2000 cc. cc मतलब cubic centimeter. Is it clear? Dividing by area of the specimen into pressure. ठीक है, एयर प्रेशर जो आप जितना एग्जर्ट करते हो उसके वो प्रेशर रहेगा, उसके बाद टाइम टेकन इन मिनट. इज इट क्लियर? तो इसको कैलकुलेट करने, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आता है, यदि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज एरिया, you will get here 501.28 dividing by P into T, where P is the air pressure and T is the time taken. Is it clear? Is it clear? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. जाना हूँ. आपका आवाज नहीं आ रहा. हेलो. ओके. Yes, sir. तो ये एक क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद से बनाओगे, कितना आता है आंसर देखो. हेलो. Yes, sir. ले लीजिए, sir. This will for your homework.